So the same old tiger wandered into Maharaja's presence and stood as if in humble supplication. Supplication means surrender kar dena, haar maan lena, to accept your defeat, to accept your loss, that is your supplication. So the Maharaja was there hunting in the forest and the tiger came across Maharaja. Tiger भी वहां घूमता घूमता आया and he stood there in humble, in polite, in modest, in sincere supplication. Supplication, surrendering. Supplication, surrendering. So he stood there in humble supplication. Master, what do you command of me? वो इस पोजीशन में, इस कंडीशन में खड़ा हो गया कि मेरे लिए क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्या चाहते हैं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं. दिस वॉज द आइडिया ऑफ द टाइगर इन फ्रंट ऑफ महाराजा. क्या उसने एक्चुअल में ये डायलॉग बोला है क्या? नहीं. बट उसके पोजीशन से, उसके खड़े रहने की स्टैंडिंग पोजीशन से इस तरह से लग रहा था कि वो ऑलरेडी महाराजा के सामने हार मान चुका है. He has surrendered, he had yielded in front of Maharaja. It was with boundless joy that the Maharaja took careful aim at the beast. The tiger fell in a crumpled heap. It was with boundless joy, infinite joy, limitless joy. जब महाराजा को वो टाइगर दिखा तो महाराजा के मन में बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, अनहद खुशी हुई, लिमिटलेस खुशी हुई. एंड ही टुक एन एम, टुक अ टारगेट एट द बीस्ट और उसको मार गिराया. द टाइगर फेल इन अ क्रम्पल्ड हीप. हीप मतलब ढेर लग जाना, पाइल जिसको हम बोलते हैं, PILE, पाइल. तो द टाइगर फेल इन अ क्रम्पल्ड हीप. क्रम्पल्ड हीप मतलब सिक्लूडेड हीप, एक जगह इकट्ठा ढेर हो जाना, कलेक्टेड पाइल हो जाना, दैट इज योर क्रम्पल्ड हीप. I have killed the 100 tiger. My vow has been fulfilled. When he was elated with joy, when he was cheered with joy, he exclaimed, he screamed, वो चिल्लाते हैं जोर से, महाराजा चिल्लाया, that my vow has been fulfilled. My pledge, my oath, my promise has been fulfilled. जो प्रतिज्ञा, जो शपथ मैंने ली थी, उसको मैंने आज पूरा कर दिया है. The Maharaja was overcome with elation. Maharaja was overcome. He was overwhelmed. He was very much happy. He was very much delighted. He was very much pleasured when he killed the 100 tiger. Of course, जो उसकी लाइफ का मकसद है, अब तक उसने जो एक मिशन बना रखा था 100 टाइगर्स को मारने का, if that is getting fulfilled, he will become extremely delighted, extremely happy. Ordering the tiger to be brought to the capital in grand procession, the Maharaja hastened away in his car. उसने ऑर्डर दिया, महाराजा ऑर्डर, महाराजा कमांडेड दैट टाइगर की बॉडी को जो है वो एक ग्रैंड प्रोसेशन के साथ में, एक बहुत बड़े जुलूस के साथ में कैपिटल में लेके आया जाए, प्रतिबंधपुरम लेके आया जाए. He gave this order that the tiger should be brought home with a grand procession, in a great function, in a great event. And the Maharaja hastened away in his car. Hastened मतलब जल्दबाजी करना. Elation, happiness. Elation means happiness. All right, so Maharaja hastened, then he quickly went away, then he quickly drove away in his car. महाराजा को सेलिब्रेशन करने की जल्दबाजी थी, तो उन्होंने ऑर्डर दिया कि इसको एक बहुत बड़े इवेंट के साथ में, बहुत बड़े फंक्शन के साथ में कैपिटल में लेके आया जाए. किसको? द डेड बॉडी, द कार्कस, द कडावर, द कॉप्स ऑफ द डेड टाइगर. After the Maharaja left, the hunters after the Maharaja left, the hunters went to take a closer look at the tiger. The tiger looked back at them, rolling in its eyes in bafflement. अब टाइगर जो है वो मरा नहीं था. टाइगर डिड नॉट एक्चुअली डाई. टाइगर डिड नॉट गेट किल्ड अवे. एक्चुअल में टाइगर की मौत नहीं हुई थी. टाइगर उस टाइम पे सिर्फ बेहोश हुआ था. सो व्हाट हैपेंड जब महाराजा के हंटर्स उसको देखने गए टाइगर को, तो द टाइगर स्टार्टेड रोलिंग इट्स आईज इन बैफलमेंट, in bewilderment.
मैं यहाँ आपके चैट बॉक्स में लिख देता हूँ bewilderment, बौखला जाना, bewilderment, ये रहा. So the tiger was looking at the hunters in bewilderment, in bafflement. The men realized that the tiger was not dead. The bullet had missed it. महाराजा ने उस अपने एम को बराबर से नहीं लिया था शायद, and the aim was missed and bullet missed the mark. और टाइगर जो है वो सिर्फ बेहोश हुआ था, टाइगर मरा नहीं था. The men realized that the tiger was not dead, the bullet had missed it. It had fainted. Fainted became unconscious. Behosh ho jana. So the tiger became unconscious from the shock of the bullet whizzing past. वो जोर से जो शॉट गया था, जो बुलेट का जोर से शॉट गया था उसके पास में से, महाराजा के पास में से, उसकी वजह से टाइगर बिकेम अनकॉन्शियस. टाइगर फेंटेड. टाइगर डिड नॉट फील लाइक स्टैंडिंग, और वो नीचे धड़ाम करके गिर गया इनटू अ क्रम्पल्ड हीप. Then what happened? The hunters wondered what they should do. अब hunters ने सोचा हम क्या करें. They decided that the Maharaja must not come to know that he had missed his target. If he did, they could lose their jobs. उसको डर लग रहा था, hunters को डर लग रहा था. If they inform the Maharaja that हमने आपके टाइगर को, आपने अपने टाइगर को मिस कर दिया है, आपने टाइगर को मारा नहीं है, तो हो सकता है टाइगर किंग गुस्सा हो जाए और हमें हमारी नौकरी से, हमारे जॉब से, एम्प्लॉयमेंट से निकाल दे. तो what happened? They decided that he must not come to know. One of the hunters took aim from a distance of 1 foot and shot the tiger. अब एक हंटर ने क्या किया, 1 फुट डिस्टेंस लिया, थोड़ा सा दूर गया और उसने अपना गन को बाहर निकाला. ही टुक अ टारगेट, ही टुक एन एम, और वहां पर उसको फायर कर दिया, शॉट को फायर कर दिया, विदाउट मिसिंग हिज मार्क. इस बार तो मार्क मिस करने का सवाल ही नहीं है. टाइगर इतना पास में पड़ा हुआ है तो ऑफ कोर्स ही बात है उसको मार सकते हैं इजीली. सो द हंटर किल द टाइगर. ऑलराइट, सो अब तक टोटल महाराजा ने कितने टाइगर्स को मारा है? हाउ मेनी टाइगर्स महाराजा हैज किल्ड? यस, 100 कैसे हुआ? 99 ही तो होगा. 100 टाइगर को तो 100 हंटर ने मारा है. टाइगर किंग ने सिर्फ 99 टाइगर्स को मारा है. 100वां टाइगर तो सिर्फ बेहोश हुआ था. Then, as commanded by the king, the dead tiger was taken in procession through the town and buried. Of course, as per the instruction, as per the order of the Tiger King, the tiger was brought to the capital, was brought to Pratibandpuram in a grand procession, in a grand event, and he was buried, and a tomb was erected, constructed, structured. टूम मतलब जो एक बहुत बड़ी समाधि बोल सकते हैं या एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, उसको उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट कर दिया गया. आप देखते हैं क्रिश्चियंस में जो है बहुत सारे लोगों को बरी किया जाता है, उनको दफनाया जाता है, उनको जलाया नहीं जाता. तो दफनाने के बाद में उनके ऊपर एक टूम स्टोन रखा जाता है, जिससे कि उनकी यादगार में उनके लिए कुछ चीजें लिख सकते हैं कि दिस पर्सन वाज बोर्न फ्रॉम दिस डेट टू दैट डेट, और उन्होंने ये काम किया, उनका नाम ये था. तो दिस टूम स्टोन इज काइंड ऑफ अ मेमोरेंडा, मेमोरियल के लिए बनाते हैं, यादगिरी के लिए बनाते हैं टूम. तो अ टूम वाज इरेक्टेड फॉर अ जेस्चर कि भाई हमारे महाराजा ने 100 टाइगर्स को मार गिराया. बट क्या एक्चुअल में ऐसा हुआ? ऑफ कोर्स नॉट. A few days later, the Maharaja's son's third birthday was celebrated. अब स्टोरी में थोड़ा सा परिवर्तन आ रहा है. अब महाराजा ने, अगर आपको पता हो तो, शादी की थी एक ऐसी गर्ल से, एक ऐसी प्रिंसेस से जिसके किंगडम में टाइगर पॉपुलेशन काफी ज्यादा थी. अब शादी की है तो बाल बच्चे होंगे, फैमिली को आगे एक्सटेंड करना ही होता है. तो द महाराजा had a son who turned to be 3 years old.
Until then, Maharaja had given his entire mind over to tiger hunting. अब तक महाराजा का सारा कंसंट्रेशन, सारा डेडिकेशन, सारा टाइम जो है वो टाइगर के मिशन में ही स्पेंड होता था. He did not care about his family, his public, his ministers, his policies, his enemies or anything. उसके दिमाग में सिर्फ एक ही भूत सवार था, एक ही सनक थी, that I have to kill 100 tigers. अब क्या हुआ? He had no time to spare for the crown prince. वो अपने क्राउन प्रिंस के लिए, अपने राजकुमार के लिए, अपने बेटे के लिए उसके पास कोई टाइम नहीं था स्पेयर करने के लिए, एक्स्ट्रा टाइम नहीं था स्पेंड करने के लिए. He wished to give him some special gift on his बर्थडे. अब सारा अटेंशन जो है वो महाराजा का अपने बेटे पे जा रहा है. एंड ही डिसाइडेड, ही टुक अ डिसीजन दैट इस बार महाराजा जो है अपने बेटे का बर्थडे बहुत अच्छे से मनाएगा, सेलिब्रेट करेगा. He went to the shopping center in Pratibandpuram and searched every shop but couldn't find anything suitable. Of course, एक प्रिंस जो है, एक राजकुमार जो है, उसकी नीड्स और उसके विशेस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. आपको तो कॉटन कैंडी, वो जो गुड़िया के बाल या बुढ़िया के बाल जो आते हैं, तो वो भी खिला दो तो आप खुश हो जाते हो. बट राजकुमारों के नखरे, राजकुमारों के जलवे अलग होते हैं. दे हैव डिफरेंट डिमांड्स, डिफरेंट डिजायर्स. सो द राजकुमार, द प्रिंस, द सन ऑफ द टाइगर किंग डिड नॉट अग्री ऑन एनी अदर गिफ्ट. तो क्या हुआ? बहुत सारी शॉप्स को सर्च किया. फाइनली ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर इन अ टॉप शॉप and decided it was the perfect gift. Finally, महाराजा ने एक वुडन टाइगर को देखा. अब ऑब्वियसली जिसके पूरी लाइफ जो है वो टाइगर को चेस करने में स्पेंड कर दी है, तो टाइगर का उसकी लाइफ में कुछ सिग्निफिकेंस, कुछ इंपॉर्टेंस, कुछ वाइटैलिटी रहता है. कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट स्पॉट रहता है टाइगर को लेके कि हमने 100 टाइगर्स को मार गिराया है. तो उसने एक वुडन टाइगर उठाया महाराजा ने, और अपने बेटे को वो गिफ्ट देने के लिए रख लिया. द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज एंड अ क्वार्टर. वहां की कोई करेंसी रही होगी, आनाज एंड क्वार्टर. बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ ही कोटेड सच अ लो प्राइस टू महाराजा, he would be punished under the rules of emergency. अब शॉपकीपर ने सोचा कि अगर मैं महाराजा को बोलूंगा कि सिर्फ इतना सा ही है, सिर्फ 2 आने का है ये, तो हो सकता है महाराजा मुझे पनिशमेंट दे दें. तो मैं ऐसा नहीं चाहूंगा. तो महाराजा को झूठ बोल दिया उसने. सो ही सेड, योर मैजेस्टी, दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप. रेयर, यूनिक जिसको हम बोल सकते हैं, स्केर्स जिसको हम बोल सकते हैं, जो जिसके जैसा अवेलेबल नहीं है, अभूतपूर्व जिसको बोल सकते हैं. यूनिक इज द वेरी गुड वर्ड. तो महाराजा को बोला कि महाराजा, ये तो बहुत यूनिक कारीगरी है, क्राफ्ट्समैनशिप है, इस पे बहुत मेहनत लगती है. देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड एफर्ट पुट इनटू दिस क्राफ्ट, एंड अ बार्गेन एट 300 रुपीज. 2 आने की चीज के लिए उसने महाराजा से कितने रुपए मांगे? 300 रुपए मांगे. एंड 300 रुपीज at that time was very very expensive, very very expensive. Very good. Let this be your offering to the crown prince. तो महाराजा ने क्या बोला? बहुत अच्छी बात है, अब चलो ये गिफ्ट तुम्हारी तरफ से मैं महाराजा, तो मैं हमारे राजकुमार को दे दूंगा. इसका मतलब महाराजा ने वो गिफ्ट जो है वो फ्री में हड़प लिया, फ्री में उसको कन्फिस्केट कर लिया. उसने बोला चलो ठीक है, 300 रुपए का ही तो है, तुम्हारी तरफ से ये क्राउन प्रिंस के लिए गिफ्ट हो जाएगा. Said the king and took it away with him. On that day, father and son played with that tiny little wooden tiger. अब महाराजा जो है उस वुडन टाइगर के साथ खेल रहे थे अपने बेटे के साथ में. अब क्या हुआ खेल खेल में? what happened? On that day, father and son played with the tiny little wooden tiger. It had been carved by an unskilled carpenter. वो जो structure था, वो जो wooden tiger था, वो किसने कार्व किया था? एक अनस्किल्ड, एक अनप्रोफेशनल पर्सन ने कार्व किया था, जिसको इतना कारीगरी का, कारपेंटरशिप का नॉलेज नहीं था. इट्स सरफेस वाज रफ. उसकी सरफेस जो थी, आप जानते हैं, अगर आपने कोई फर्नीचर का आइटम या वुडन आइटम देखा हो,
तो उसमें बांस होती है, अगर उसको ढंग से फ्रिक्शन नहीं किया जाता है, उसको घिसा नहीं जाता है, तो वो बहुत रफ हो सकता है और वो चुभ सकता है. टाइनी स्लिवर्स ऑफ वुड, टाइनी पॉइंटेड नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स, जो बांस होती है, तीखी तीखी बांस होती है, उसको स्लिवर्स बोलते हैं. टाइनी नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट. क्विल्स क्या होते हैं? क्विल्स आपने देखा होगा, पुराने टाइम में पेन नहीं चलते थे, पेन की जगह वो पंख यूज करते थे, फेदर्स यूज करते थे अपने लेटर्स लिखने के लिए, अपने बुक्स लिखने के लिए. वो बार बार उस फेदर को जो है उसको इंक में डुबोते थे और लिखते थे. तो वो जो पॉइंटेड एंड होता है क्विल का, पेन का जो पॉइंटेड एंड होता है, दैट यूज टू बी एज द निब. जो आपके पेन की निब होती है, उसके लिए क्विल को आराम से तीखा कर दिया जाता है ताकि बहुत इजीली स्मूथली लिखा जा सके. तो उस क्विल को जैसे तीखा तीखा होता है, वैसे ही तीखा सरफेस, वैसे ही तीखा सरफेस उस वुडन टाइगर का था, उस टॉय टाइगर का था. One of those slivers pierced Maharaja's right hand. He pulled it out with his left hand and continued to play with the prince. तो वो जो छोटा सा स्लिवर है, छोटा सा बांस का टुकड़ा जो है, छोटा सा वुडन एलिमेंट जो है, वो महाराजा के राइट हैंड में घुस गया, पियर्स हो गया, पेनिट्रेट हो गया. He pulled it out with his left hand and continued to play with the prince. तो महाराजा ने सोचा छोटा सा ही तो है यार, उसको निकाला और वो खेलने लग गया. The next day, infection flared in the Maharaja's right hand. Flared, spread. Spread हो जाना, that is flared. तो नेक्स्ट डे क्या हुआ? हम बोलते हैं टिटनेस का शॉट क्यों लगाते हैं? जब भी कोई आयरन की चीज हमारे अंदर चली जाती है, तब हम टिटनेस का शॉट लगाते हैं ताकि आपका जो आयरन का इन्फेक्शन है वो रुक जाए. तो वो चीज महाराजा ने नहीं करवाई और महाराजा ने उसको लाइटली ले लिया, उसको इग्नोर कर दिया, अवॉइड कर दिया, और अल्टीमेटली महाराजा के हाथ में इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो गया. इन 4 days it developed into a separating sore which spread all over the arm. sore, SORE, sore मतलब घाव, वुंड जिसको हम बोलते हैं, WOUIND, वुंड. तो नेक्स्ट डे, अगले 4 दिनों में, इट गॉट इनटू अ सेपरेटिंग सोर. पहले सोर का मतलब समझेंगे. सोर मतलब जो घाव होता है, इंजरी होती है, वुंड होता है, दैट इज योर सोर. सेपरेटिंग विच क्रिएट्स पस, जिसमें फ्लूइड क्रिएट होता है, बहुत सारे छाले, बहुत सारे ब्लिस्टर्स होते हैं, बहुत सारे घाव होते हैं जिसमें से लिक्विड निकलता है, उसमें से पस ऊज होता है, पस ड्रिप होता है. तो वैसा गंदा सा इन्फेक्शन जो है महाराजा के आम में होने लग गया, महाराजा के आम में होने लग गया. 3 famous surgeons were brought in from मद्रास. अब ऑफ कोर्स महाराजा था, तो महाराजा की मदद के लिए, महाराजा के मेडिकेशन के लिए 3 फेमस सर्जन्स को बुलाया गया मद्रास से, जो आजकल चेन्नई के नाम से जाना जाता है. After holding a consultation, they decided to operate. The operation took place. Operation हुआ महाराजा का. The 3 surgeons who performed it came out of the theater and announced. 3 सर्जन जो गए थे उन्होंने बाहर आके अनाउंस किया, the operation was successful. महाराजा is dead. अब ये देखो, अगेन अ वेरी आयरॉनिकल स्टेटमेंट. भाई जब ऑपरेशन सक्सेसफुल था तो महाराजा डेड कैसे हुए? ऑपरेशन सक्सेसफुल तो मतलब ये होना चाहिए कि महाराजा को आपने बचा लिया, बट महाराजा तो मर गए, महाराजा की मृत्यु हो गई. एंड ही द डॉक्टर्स आर सेइंग दैट ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल. In this manner, the 100 tiger took its final revenge upon the Tiger King. अब आप ये बात को देखना, उसने अपनी entire life, he spent his entire life killing live tigers, killing wild animals, killing ब्रीदिंग टाइगर्स, जिनके अंदर जान है उनको. और एक नहीं, दो नहीं, 99 टाइगर्स मार दिए. बट अल्टीमेटली हिज डेथ वाज कॉज्ड बाय अ वुडन टाइगर, बाय अ प्ले टॉय. एक खिलौने से उसकी डेथ हुई. खिलौने में भी, खिलौने के छोटे से स्लिवर से, एक छोटे से लकड़ी के टुकड़े से महाराजा की
डेथ हुई, उसका सारा ब्रेवरी, सारा करेज, सारा शिवलरी, सारा पावर, स्ट्रेंथ, सब धरा का धरा रह गया। मतलब यू कैन नॉट एस्केप योर डेथ। इफ death is written in your life, in your fate, in your destiny, you will meet your death one day or another eventually. अब महाराजा के लाइफ में टाइगर के थ्रू डेथ लिखी हुई थी, तो ऑफ कोर्स ही कैन नॉट एस्केप दैट डेथ। उसने बहुत कोशिश की डेथ को एस्केप करने की, डेथ को ओवरकम करने की, डेथ पे विक्ट्री हासिल करने की, बट ही कुड नॉट इल्यूड, इल्यूड मतलब एस्केप, बच के निकल जाना, बच के निकल जाना। तो ही कैन नॉट इल्यूड डेथ, एंड डेथ भी हुई इन सच एन एम्बैरसिंग, इन सच अ मॉर्टिफाइंग, सच अ डिसरिस्पेक्टफुल कंडीशन। इतने बड़े महाराजा की डेथ अगर एक खिलौने से हो जाती है, तो क्या ये उसके लिए अच्छी बात है या खराब बात है? इज इट अ मैटर ऑफ डिग्निटी और इट्स अ मैटर ऑफ शेम? यस, is it a matter of dignity or is it a matter of shame, guys? It's a matter of shame, of course. Exactly. इसमें कोई गर्व की बात नहीं है, इसमें कोई प्राउड फील करने की बात नहीं है। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर समझेंगे और परसों हम लेटर राइटिंग पे कंसंट्रेट करेंगे। इस चैप्टर में कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझसे अभी पूछो। यू कैन आस्क मी द डाउट राइट नाउ। यस, एनी डाउट? प्लीज एलैबोरेट द आयरॉनिकल पार्ट। चलो ठीक है, पहली बात तो समझते हैं आयरनी क्या होता है। आयरनी मतलब हम बात कुछ कर रहे हैं और हो कुछ और रहा है। मैंने आपको शुरू शुरू के फर्स्ट दिन ही एग्जाम्पल देके बताया कि आप 12 बजे उठते हैं और आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि उठ गया हमारा राजकुमार, उठ गया हमारा राजकुमार। राइफ मतलब जो बहुत प्रचलित अफवाह होती है उसको र्यूमर राइफ बोलते हैं शिवानी। तो ऑफ कोर्स आपके पेरेंट्स आपको राजकुमार नहीं बोलना चाहते हैं, वो आपके आलस पे टॉन्ट कर रहे हैं, आपके देर देर तक सोने तक टॉन्ट कर रहे हैं। तो दीज ऑल आर सरकाजम, आयरॉनिकल स्टेटमेंट्स, टॉन्टिंग स्टेटमेंट। इस चैप्टर में आयरनी क्या है? महाराजा जब 10 दिन का था, videos of this chapter is not available right now स्नेहा, बट वैसे भी आपके हाफ ईयरली एग्जाम में टाइगर किंग नहीं आ रहा है। जब ये नेक्स्ट टाइम आपके कोर्स में आने वाला होगा, तब तक ये आपका उस पे ईआरपी पे अवेलेबल हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ लीजिए, सुन लीजिए। तो जब महाराजा 10 दिन का था, तब से एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रिडिक्शन दे दिया कि भाई इसकी डेथ जो है वो टाइगर से होगी। When Maharaja became 20-year old, he got to know about this prophecy, he got to know about this prediction, about this forecasting, and he thought that I should prove the astrologers wrong. I should defeat the cause of my death. I should overcome all the tigers so that I can live immortally. Immortal मतलब अमरत्व के रूप से, जो कभी नहीं मरता है। तो महाराजा वॉज सेट ऑन हिज मिशन, और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ झोंक दी। उन्होंने अपने राज्य पे ध्यान नहीं दिया, किंगडम के अफेयर्स पे ध्यान नहीं दिया, अपनी फैमिली, अपनी बीवी, अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दिया, अपने रिलेशंस पे ध्यान नहीं दिया, मिनिस्टर्स पे ध्यान नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ उनका एकमात्र यही मिशन था कि मुझे टाइगर्स को हंट करना है। उन्होंने टाइगर्स हंट भी किया। टाइगर्स हंटिंग के साथ साथ में उन्होंने अपने बहुत बार ऐसा सिचुएशन हुआ जब उनका किंगडम खतरे में पड़ गया, तो किंगडम को छुड़ाने के लिए उन्होंने 3 लाख रुपए की ब्राइब भी दी, रिश्वत भी दी, वो ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को डायमंड रिंग्स के रूप में। बहुत बार ऐसा होता था कि वो क्या बोलते हैं, अपनी जान जान को जोखिम में डाल देते थे, डेंजर में डाल देते थे। इवन टाइगर किंग ने अपनी शादी भी इसी पर्पज से की कि मैं ज्यादा से ज्यादा टाइगर मार सकूं, ऐसा ससुराल मुझे चाहिए।
So his entire life was revolving around, rotating around tiger, tiger, tiger. And eventually, his death was approached by a wooden tiger, a play toy, जो उसने अपने बच्चे के लिए खरीदा था. That is the irony. Second, this chapter also points out the flattering side of the ministers. Flattering मतलब जो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, जो मस्का लगाते हैं, मक्खन लगाते हैं. तो दीवान साहेब was an absolute stupid idiotic fellow. He was a foolish nincompoop fellow. He did not know anything. इवन जब महाराजा और उसका कॉन्वर्सेशन होता है कि मुझे शादी करनी है, तो वो बोलता है कि मैं तो ऑलरेडी शादीशुदा हूँ. आपके एंसेस्टर्स ने गन से शादी की थी, तलवार से शादी की थी. तो ही इज एन एब्सोल्यूट स्टूपिड रिडिकुलस पर्सन. वो सिर्फ और सिर्फ महाराजा की सिकोफैंसी करके, सिकोफैंसी मतलब चापलूसी करके, चाटुकारिता करके, ही वॉज सर्वाइविंग इन द कोर्ट. और जब उसको अपनी जॉब लूज करने का अपॉर्चुनिटी आया, जब महाराजा ने बोला कि तुम भी रेजिग्नेशन दे दो, देन ही ब्रॉट अ टाइगर विच वॉज हिडन इन हिज हाउस. अब एट लास्ट मोमेंट पे उसने टाइगर किंग को हेल्प करने की सोची. तो ही वॉज ऑल्सो नॉट अ गुड एम्प्लॉय, अ प्रोफेशनल मिनिस्टर. वो वहां रह रहा था टोटली ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैटरी, बूट लिकिंग जिसको हम बोलते हैं. बूट लिकिंग, किसी के जूते तलवे चाटना, that is not a good characteristics, that is not a good trait. So I hope the main basic concepts of this chapters are clear. कल जब हम क्वेश्चन आंसर समझेंगे करेंगे, तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. On page 14th, last fourth line, why many officers lost their jobs. Many officers lost their jobs because of the fury, because of the anger, because of the rage of Maharaja. महाराजा ने बोला कि भाई यहां से टाइगर ढूंढ के लाओ. दो ऑफिसर्स गए और टाइगर नहीं मिला. वो वापस आए तो महाराजा ने बोला तुम किसी काम के नहीं हो, निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से. आप आज से तुम्हारा जॉब छूट गया. तो दैट इज व्हाई द ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, because Maharaja was very angry. He could not find the 100th tiger. Yes, any other doubt? Any other doubt, guys? No? All right. Let's end our session here today. Tomorrow we will be discussing question answers. I'm so happy you guys join my class regularly on daily basis. Very good. Appreciate that. And I hope you're having good times. Bye, guys. Bye bye.